Hello, namaste, adab, and welcome to our first episode of our podcast, which is Spill the Chai with Daphne Prashad, जिसमें we talk about all the facts related to health, mental health, nutrition, and fitness. And today we are going to dive deeper into a very interesting topic which is popping up in the news, in the hospitals, and on every WhatsApp chat. Yes, you guessed it right. We are going to talk about the new coronavirus variant of 2025. And to help us understand this topic with more practicality, we have with us a very special guest who's a brilliant doctor, the public health voice, and also who has been on the front line of corona care, Dr. Bhuvnesh Kumar. Welcome, Dr. Bhuvnesh Kumar. Thank you for joining us. And before we dive into this topic, I would really like you to brief yourself and also share your small experience about dealing with coronavirus patients in the past. Thank you so much. My name is Dr. Bhuvnesh Kumar. I'm an intensivist and I'm providing my services last 12 years in Agra and ICU. I have encountered the first wave of COVID as a resident in a hospital. The experience was very exciting for me working as a corona warrior in such time where people were mentally and physically disturbed due to this virus, and the virus which created a phobia in a whole mass of this country, not even in this country, on the whole planet. So it was very exciting and very कुछ सीखने को मिला उस वक्त एज एन वॉरियर और एज अ वॉरियर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि हमारे समय में उस वक्त में जो ये पैंडेमिक आई और वो हम सब के लिए, हमारी जनरेशन के लिए एक पहला और एक बिल्कुल अलग से हट के एक्सपीरियंस रहा. बीइंग एज अ डॉक्टर, it was also a challenge for me and for my team also, but we did it and I'm passed away, and right now I'm here with you in this podcast where we are going to discuss about the corona and experience and the effect of human society Exactly. of coronavirus, especially on mental level, and the panic which was created in 2019 by this virus. Still, it is persisting in the society and the people are very fearful until the date. That's it. So, डॉक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है और ये क्या है और क्या ये कितना डिफरेंट है पुराने कोरोना वायरस वाली वेरिएंट से. It's JN1, a new Omicron variant of this earlier previous coronavirus. Yeah. In 2019, we got Alpha, Right. Beta and Delta. After that, in 2021, we got a new variant which was called Omicron, and it is very difficult to study the Omicron variant for the scientists. It was very difficult. Still they are studying it. The cases are being recorded and the data, as per the data collected throughout the world by the scientists, it is still in search for the changes what the scientists have seen in this variant, especially the JN1. And it is a very specific virus. So पुराने वालों से बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि इसलिए खुद को ऐसा म्यूटेट किया है कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ना, वहाँ पे म्यूटेशन हुआ था. और बेसिकली स्पाइक प्रोटीन जो होता है वो किसी वायरस के
मेम्ब्रेन पे वो स्पाइक उसको हेल्प करता है किसी भी होस्ट स्पेशली ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स हैं उसमें एंटर उस पर अटैच करने के लिए और उसमें अंदर एंटर करने के लिए, जिससे कि ये काफ़ी तेजी से और इन शॉर्टर टाइम इट कैन स्प्रेड. Oh. That's why it is very unique In comparison. with the various other variants like Delta, Alpha, Beta, and the NB1.8.1 and LF7. Yeah. But, So, according to you, that means is it more dangerous and contagious पुराने वालों से comparison में? yes, maybe still the data is in search for the highly, but the data has showed us it is infectious because of highly infectious in comparison to the earlier ones because of its unique changes like the mutation in the spike protein. Okay. जब ये किसी भी ह्यूमन सेल पे जाके अटैच होगा और फिर उसमें एंटर करेगा और उस टाइम और जो म्यूटेशन की वजह से उसको जो मिला है स्पाइक प्रोटीन में उसकी वजह से ये बहुत इजीली तेजी से शॉर्टर टाइम में ट्रैवल करके अंदर जा सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी इजी भी ये स्प्रेड कर रहा है शॉर्टर टाइम में. नियर वंस में जो था वो थोड़ा सा वेरिएंट्स में था कि वो पीछे हैं स्प्रेड करने में बिकॉज वो उतना उनके अंदर म्यूटेशन नहीं हो पाया. बट दिस वेरिएंट स्पेशली JN1 तो साइंटिस्ट ने देखा है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो यही कि म्यूटेशन हो चुका है और वो म्यूटेशन अपने आप में एक नया पैटर्न लेके आया है, इसका वेरिएंट लेके आया है जो स्ट्रीन वो सबसे इसको डिफरेंट और स्पेशल बना देता है. इसलिए ये शॉर्टर टाइम में बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो रहा है. अभी रिसेंटली डाटा इंडिया में हमें आज की टिल डेट का है वो एक्टिव 450 केसेस हैं और रिकॉर्डेड है 1009, अब तो शायद ज़्यादा हो गया. Oh God. और 12 स्टेट्स में ये फैल चुका है. हाँ, और पाकिस्तान तो पूरा ज़्यादा देखे हैं जी एशिया में, इसमें पाकिस्तान में तो रेड अलर्ट है कि वहाँ बहुत ज़्यादा JN1 केसेस मिल रहा है. बिल्कुल. तो डॉक्टर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वाले वेरिएंट के सिम्टम्स क्या है? क्या ये पुराने जो ओरिजिनल वेरिएंट था ओमिक्रॉन का उसकी तरह ही सिम्टम्स है या इसके सिम्टम्स थोड़े अलग है? JN1 इज ऑल्सो ओमिक्रॉन वेरिएंट है. हाँ, इसमें म्यूटेशन हुआ है. कोरोना वायरस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस. ओके, इट्स अ रेस्पिरेटरी वायरस. इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. तो सिम्टम्स प्रीवियस वेरिएंट्स के जो अर्लियर इन 2019 में SARS-CoV-2 डिटेक्ट हुआ था सबके सिम्टम्स सेम है, बस थोड़ा सा JN1 को अलग से बनाता है इसका नया वेरिएंट. यहाँ पे आपको जो टेस्ट और स्मेल वाला सिम्टम था वो नहीं मिलेगा, ऑफ वेयर नहीं मिलेगा और बाकी सारे सिम्टम्स आपको कॉमन मिलेंगे. बस एक ये सिम्टम अगर आपको मिल रहा है कि इसको टेस्ट और स्मेल का कोई सिम्टम नहीं है, टेस्ट और स्मेल बोथ आर नॉन रिकग्निशन इन दैट मी इज सफरिंग फ्रॉम द JN1. ही और शी ने भी सफरिंग फ्रॉम द JN1. तो वो ही है कि इसको यूनिक बना रहा है. दैट इज़ अ वेरी अनकॉमन फीचर जो भी रिसर्च पे डाटा में मिला है. स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन. अभी भी कोई श्योर नहीं है, बट गाइडलाइंस में बताया गया है, एडवाइजरी गवर्नमेंट एडवाइजरीज में लिया और बताया गया है कि फीवर द सेम, ऑल द रेस्पिरेटरी वायरस ऑफ द सेम have same symptoms: fever, sore throat, cough, fatigue, malaise, and shortness of breath. Occasionally, in moderate cases, in mild infection, you find sore throat first, Right. running nose, Okay. and fatigue, malaise feeling. But in moderate cases, you may develop shortness of breath also, and in severe cases, you may land in the LRTI, lower respiratory tract infection. That may land into ARDS. मतलब जो पहले भी यूज टू थिंक दैट अगर हमें फीवर के साथ साथ वी आर लूजिंग सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल दैट मीन्स इट इज कोरोना, तो अब ऐसा सिम्टम नहीं है. सुन नहीं है वो आपको ओमिक्रॉन के उन सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, बट इस वेरिएंट में JN1 में स्पेशली देखा जा रहा है कि टेस्ट और स्मेल वाला सिम्टम वो जाने का उसका लॉस कटेगा, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल वो नहीं मिल रहा.
So I would really like to tell all my viewers on this note कि अगर आपको लगता है आपको फीवर आ रहा है और जितने भी सिम्टम्स डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, पर आपको लग रहा है क्योंकि आपका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं जा रहा है तो आपको कोरोना नहीं है, तो प्लीज़ इस गलतफहमी में ना रहें। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ अभी के अभी जाके अपने आप को टेस्ट कराएं। सो डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस वेरिएंट को लेकर, इस कोरोना को लेकर कौन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं? क्या एल्डरली लोग, जो ओल्ड लोग हैं, वो जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो ही सिर्फ इसके शिकार है, या फिर पीपल हु आर यंगस्टर्स और जिनकी जो काफ़ी हेल्दी हैं या हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कोरोना वायरस और हैव बीन वैक्सीनेटेड, वो भी इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँ। इस वक्त आपने सबसे अहम जो सवाल है, जो बहुत ज़रूरी है हम सबको जानने के लिए, जो मिथ्स हैं, बिल्कुल ठीक और सही सवाल आपने पूछा है। और सोसाइटी को और हर लेमैन को पता होना चाहिए कि ये वायरस क्या है और इस वायरस से बचा कैसे जा सकता है, किस एज ग्रुप पे लोग अफेक्ट हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, और जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड वेव में, क्या उनको री इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है या नहीं, और हुआ तो फिर वो कैसे से मैनेज करें, उनके लिए वो अलार्मिंग और ट्रिगरिंग है, और जो वैक्सीनेटेड हैं या बूस्टर डोज ले चुके हैं क्या वो सेफ़ हैं या उन्हें इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, या फिर हो भी सकता है तो वो किस तरह का होगा, उसकी सीवियरिटी कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जिस तरह सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं और नॉर्मली उसी तरह का एक वायरस है, लेकिन इस वायरस में एज बीइंग द टाइम, समय के साथ खुद को इसने म्यूटेट करता रहा, ये अलग अलग वेरिएंट बनाता रहा, जो इससे पहले कभी किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस में नहीं हुआ, जहाँ तक स्टडीज हमें बताती है। इस बार इसने इनिशियली 19 से लेके अब तक लगभग अल्फा, डेल्टा, बीटा, देन ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के अपने नए वेरिएंट इसमें NB 1.8.1 LF7, स्पेशली इंडिया में आप अभी डायरेक्ट गुजरात और आई थिंक केरला में हुए केसेज उसके। फिर बाकी JN1 जो इसका वायरस है, जैसा कि मैंने बताया, कोरोना वायरस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस। देखिए, वायरस कोई भी हो, व्हेन कम्स टू अस, और जो वो हमारे पास आता है ऐसे है नहीं, तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे अपना खुद का काम करना होता है। वायरस तो है, वो रहेगा, जाएगा भी नहीं जी, वो खुद को रोटेट करता रहेगा, खुद को बदलता रहेगा, उसने यही रहना है जी। बट जब उसने यही रहना है तो हम कैसे फाइट करेंगे? शुरू से ही जब इस तरह के वायरसेस आए हैं, पेंडेमिसिटी आई है, तब ह्यूमन बॉडी ने खुद को उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट किया, और उसके इम्यून सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग ही, उस समय के अनुसार और उस सिचुएशन के अनुसार और द इंटेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्शन, उस प्रोपोर्शन में उसने खुद को इवॉल्व किया और फाइट, जो भी काम इम्यूनिटी का है जी। जब आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है तो वो उस समय हुए इन्फेक्शन से एक इम्यूनिटी खुद गेन करता है कि अब आने वाले समय में अब दोबारा इससे अगर इन्फेक्शन होगा तो काम नहीं करेगा वायरस। जो भी एंटीजन आपके अंदर आ रहा है ठीक, बॉडी स्टार्ट टू डेवलप एंटीबॉडीज, राइट, ओके। लेकिन इस वायरस में JN1 में जो म्यूटेशन हुआ है जी, उसमें उसकी एक खूबी और है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन एस्केप, या फिर इम्यून इवेजन, इम्यून एस्केप, एंटीजेनिक एस्केप। ये जो उसने खुद को बनाया है, जिस म्यूटेशन की वजह से वो ऑलमोस्ट आपकी इम्यूनिटी को एस्केप कर दे रहा है। जो भी लोग 2019 में इन्फेक्ट हुए हैं, वो लोग अगर सोच रहे हैं कि वो JN1 उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने एज पर द लॉ ऑफ नेचर, एज पर द लॉ ऑफ पैथोलॉजी, उन्होंने इम्यूनिटी गेन कर लिया जी,
जिनको इन्फेक्शन हो चुका है तो शायद GN1 उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा, री इन्फेक्शन होगा। और स्पेशली GN1 के केसेस में तो हो ही रहा है, क्योंकि उसका जो म्यूटेशन हुआ है कर ही ऐसा रहा है कि वो आपकी इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है। इम्यूनिटी स्केप एक ऐसा फेनोमेना है बॉडी का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक आइटीजन हूँ, आप एक होस्ट है जी, मैं आपके पास आता हूँ और आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और आप एक होस्ट हैं मेरे लिए। मैं आपके पास आता हूँ और आपकी इम्यूनिटी मुझे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है कि आई एम एंटीबॉडी, आई एम एंटीजन, मैं एक एंटीजन ही। तो जब मुझे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है तो एलिमिनेट कैसे करेगी? तो दैट इज कॉल्ड एस्केप। कि मैंने आपकी जो प्रीवियस इम्यूनिटी थी आपको मिली थी, जिसमें आपको लगता था कि मैं एक रेस्पिरेटरी वायरस उससे इन्फेक्ट हुई और मैंने एज पर द लॉ ऑफ नेचर मैंने वो इम्यूनिटी गेन कर ली, और आगे जाके कभी भी मुझे इन्फेक्शन होता है तो ईयर बाय द ईयर आई कैन फाइट। बट कहीं ना कहीं फिर भी आपकी पार्शियल इम्यूनिटी स्किप हो जाती है इस न्यू JN1 की वजह से। इसकी एक क्वालिटी है कि वो आपके उस मैकेनिज्म को यूज कर रहा है दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी स्किप। दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड। हाँ, तो इम्यूनिटी क्या स्केप का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि आप या मेरी खुद की इम्यूनिटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो उसका फंक्शन है कि कोई भी एंटीजन अगर आ रहा है मेरे अंदर तो मेरे सेल्स में, तो मैं उसको डिटेक्ट करूं। अगर मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसका पहला फंक्शन है कि मैं एनिमी को डिटेक्ट करूं और उसको डिस्ट्रॉय करूं, लेकिन वो पहला ही नहीं शुरू हो पा रहा कि मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि एनिमी इज इनसाइड। एग्जैक्ट, दैट इज व्हाई इस वजह से वो बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर रहा है और तेजी से शॉर्टर टाइम में स्प्रेड हो रहा है। अब बात आती है कि जैसा आपने पूछा था सवाल कि क्या किस तरह के लोग अफेक्ट होंगे इससे। देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है और नुकसान उन लोगों को ज़्यादा है जो लोग ऑलरेडी पहले से जबकि इम्यूनिटी वीक है। किसी भी वायरस से या किसी पैथोजन से लड़ने के लिए आपको गॉड हैज क्रिएटेड यू एज अ होल, और उसमें आपको आपका डिवाइन एक वेपन दिया है दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, बाय व्हिच वी लिव, by which we fight, by which we survive on this planet every seconds of our life. अब जब वो हमारा जो डिवाइन वेपन है वो पार्शियली काम करेगा, फुली नहीं करेगा, तो कोई भी एंटीजन आएगा वो हमें इन्फेक्ट करेगा और इजीली हमारे अंदर ग्रो करके वो अपनी कॉलोनीज बनाएगा, फिर वो एज अ डिसीज आगे जाके हमारे अंदर ग्रो करेगा। लेकिन जिन लोगों के पास वो पार्शियल इम्यूनिटी है, जो पहले भी इन्फेक्ट हो चुके हैं और इवन मतलब म्यूटेशन एस्केप या फिर इम्यून इन्वेजन के बावजूद भी अगर इन्फेक्ट हो रहे, फिर भी आपकी वो पार्शियल इम्यूनिटी जो है वो आपको हेल्प करेगी इस इन्फेक्शन से लड़ने में और इससे बाहर आने की। लेकिन जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है ड्यू टू बिकॉज ऑफ काइंड डिसीज लाइक ऑटोइम्यून डिसीज, जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी खुद आपकी दुश्मन बनी हुई है, ठीक है, या अब जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, या फिर जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है लाइक डायबिटीज़, या फिर जिनको कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेज है लाइक ILD, ऑलरेडी जिनके लंग फाइब्रोज्ड है, या फिर जो पहले से ऑटोइम्यून डिसीज देके चल रहे हैं साथ में, या फिर सिरोटिक पेशेंट जिनकी लिवर फेल है, कोई भी ऑटो फेलियर का पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ कॉमोर्बिडिटीज देके चल रहा है वो हाईली ससेप्टेबल है। ओके, क्योंकि उसकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज के, अब वो हाईली ससेप्टेबल, चाहे वो बच्चा हो या वो यंग हो, टीनेजर हो, यंग हो, एडल्ट हो, या फिर एक 40+ हो, या फिर एक ओल्ड एज हो, मतलब व्यक्ति हो। अगर वो बीमार है पहले से और उसके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसकी इम्यूनिटी को वीक बनाती हैं, या वो कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहा है जो इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, जैसे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हाईली ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, तो वहाँ आपकी रिस्क बहुत हाई है टू गेट इन्फेक्टेड। और इन्फेक्ट होने के साथ साथ
कि वो डिसीज़ आपको परेशान करेगा, वो इन्फेक्शन आगे जाके मतलब सीवियरली वो आपको परेशान कर सकता है। बाकी नॉर्मली अगर जो भी अच्छा या यंग या एडल्ट या फिर कोई भी 40 प्लस या 60 प्लस का अगर वहाँ कोमोडिटीज़ नहीं है, वो फिट और हेल्दी है, किसी मेडिकेशन भी नहीं है, दे आर वेरी गुड टू फाइट बिकॉज ऑफ देयर ओन इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी जो ने गेन की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्स्ट कोविड वेव और सेकंड कोविड वेव। अब बात आती है कि आपने पूछा जो इन्फेक्ट हो चुके हैं जी या जिन्होंने बूस्टर डोज ले रखी है। राइट। देखिए वैक्सीन एक्चुअली हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस आरएनए वायरस और बेस वायरस, और जो वैक्सीन बना वैक्सीनेशन लेने से आपकी इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगा। देखिए जिस तरह का इसका वेरिएंट है, जो इसका म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में जो हुआ है, उसकी वजह से दूसरा इसके पास एक जो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म का सन मिला है, उसकी वजह से ये स्प्रेड तो कर रहा है। लेकिन अब जिन बंदों की या जिन भी लोगों ने पहले से वैक्सीन लिया हुआ है, बूस्टर डोज ली हुई है, या फिर जो पहले से प्रीवियसली अर्लियर वेरिएंट से इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों को इतना हेल्प मिलता है कि उनकी जो पार्शियल इम्यूनिटी है दैट विल हेल्प देयर टू फाइट देयर वायरस। ओके, तो हो सकता है कि आपकी जो इम्यूनिटी इन्फेक्ट तो आप हो गए, लेकिन आप विद इन 5 to 7 days इसका रिकवर कर जाओगे, वो वहाँ हेल्प करती है। ये एक डोज बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीनेशन की है, जो भी जिसने भी बूस्टर डोज दी हुई है, डाटा बता रहा है, जो अभी तक डाटा आया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो केसेस अभी इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं वो लोग, जो मार्च पीरियड तक का डाटा है। तो वैक्सीन की बूस्टर डोज और प्रीवियस इन्फेक्शन जो आपको पास में हुआ है जी वो आपकी इम्यूनिटी को जो पार्शियल इम्यूनिटी हो जाती है हमारी, वो उस इम्यूनिटी को बूस्ट करके और उस इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी हेल्प ही कर रहा है। तो ये कहना कि आप भी इन्फेक्ट नहीं हो, डेफिनेटली होंगे, लेकिन उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी उसका माइल्ड हो और आप एसिम्प्टोमेटिक रहें। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आप कोई पैथोलॉजी आपके अंदर नहीं है, देयर इज़ नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी यू आर हैविंग, आप यंग हैं या आप ओल्ड एज हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और आप पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो आप इजीली इससे निकल जाएंगे। पर जो लोग इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है या दे आर सिक एंड दे आर हैविंग सो मैनी क्वालिटीज इन देयर बॉडी एज अ डिसीज, तो वो उनके लिए मुश्किल है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों कैटेगरीज में इन्फेक्शन तो शुरू में आपको माइल्ड नहीं होगा। अगर आप पहले से कुछ बीमारियां लेके बैठे हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो जीरो है या बहुत कम काम कर रही है, यू आर नॉट एबल टू फाइट विद इन्फेक्शन टू बी डिसीज या इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से, तो माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर पे लैग जाती है, वो कन्वर्ट होगा एंड यू विल डेफिनेटली मे नॉट सर्वाइव। तो बात डिजीज़ की पैथोलॉजी भी नहीं है कि वो सेम वायरस है, थोड़ा सा वेरिएंट अलग हुआ है, पैटर्न भी वही है, बट जो असली जो मेन मुद्दा है वो है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यू विल सर्वाइव डेफिनेटली इन सीवियर केसेस आल्सो। तो दैट मीन्स कि इसका कोई एज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ इट इज़ ऑल अबाउट हाउ लाइक आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो भले ही आप ओल्ड भी क्यों ना हो, आप इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने तो अपने कुछ वेव 1 में कई केसेस ऐसे देखे थे जो 90 प्लस के हैं, 86 से थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और उनका सैचुरेशन वाज रूम एयर पे सैचुरेशन वाज 94-93 और उनके लंग ऑलमोस्ट 80 to 90% इन्वॉल्व टू दिस इन्फेक्शन। बहुत सारे केसेस देखे तो इजीली सर्वाइव कर गए क्योंकि दे वर हैविंग देयर एबिलिटी ऑन द फ्लोर। कुल ठीक थे, कोई पहले से कोविडीज थी नहीं जिन्होंने पास किया। इवन यंग बॉयज जिनका रूम एयर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन आता था 40-50, वो लोग भी समय के राज भी दे आर फिट एंड फाइन। सारा किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का या बॉडी में किसी भी डिसीज़ का
जो भी मैकेनिज्म है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और वो तुरंत एक्टिवेट होकर के बिल्कुल अपना काम कर रहा है, तो इट मीन्स यू आर हेल्दी एंड यू विल विन फ्रॉम दिस मैटर। अगर आपका इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है तो एक छोटा सा माइनर इन्फेक्शन भी, एक छोटा सा यूपीआई भी, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, माइल्ड भी, वो भी आपके लिए फैटल है। ओके। तो डॉक्टर इसी चीज़ पे कि इम्यूनिटी की बात जो हम कर रहे थे, तो ऐसे कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो इस वेरिएंट से हमें बचा सकते हैं? कौन से स्टेप्स ऐसे होने चाहिए, कौन सी? सब कुछ करे सर। वेव 1 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, वेव 2 ने सिखाया, और हर बार सोसाइटी सीख ही रही इस तरह के वायरस से। देखिए, प्रिकॉशंस जो इनिशियल बताए गए थे सेम है। डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस सबसे पहला। क्राउडेड प्लेसेस में अगर आप चाहें कोशिश करें ना जाएं, ज़रूरत के हिसाब से ही जाएं। अगर आप जा भी रहे हैं तो वियर मास्क, और स्पेशली वो मास्क जो ये जो N95 जी बिल्कुल 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 आप घर के बने हुए मास्क भी पहन सकते हैं। देखिए, N95 मास्क अगर आप हाईली इन्फेक्शियस एरिया में जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ डिजीज है, तो आप N95 का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप सिंपल मास्क पहनें। अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या किसी भी क्राउड एरिया में जा रहे हैं, सिंपली मार्केट ही जा रहे हैं, आपको लगता है, सबसे पहले आप मास्क पहनें। दूसरा फिजिकल डिस्टेंस। तीसरा हैंड हाइजीन प्रॉपर्ली, जैसे सिखाया कि सुमन के वो आप प्रॉपर्ली यूज़ करें अपने वॉशिंग हैंड्स के लिए। और तीसरा कि जो भी लोग बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, निमोनिया, अस्थमा, दमा, COPD, इस तरह के मरीज जो दवाइयों पर हैं, चाहे वो यंग हो, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी तरह का मरीज जो पहले से बीमार है, काफ़ी लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर है उसका जीवन, तो उस मरीज को सबसे पहला तो उसको ऐसे इलाकों में या घर से बाहर निकलने के लिए ही मना किया गया है, वो घर पे रेस्ट करे। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी जाना भी है, तो उसने इस बात का ज़्यादा विशेष का ध्यान रखना है कि वो मास्क पहनेगा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और हैंड हाइजीन, ठीक है। चौथा कि अगर वो बूस्टर डोज वैक्सीन की उन्होंने ले रखी है, पहले नहीं लिया है, तो इट इज़ बेटर कि चाहे वो वैक्सीन लगवाएं। ओके। यही सबसे मुख्य प्रिकॉशंस हैं जो हमें अपनानी है, और वायरस से बचने का एक सबसे आसान तरीका यही है। सो डॉक्टर, एज अ हेल्थ कोच मैं भी अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए अपने जितने भी क्लाइंट्स को बहुत ही फोकस करवाती हूँ कि यू शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, स्लीप एंड स्ट्रेस। तो क्या आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट कोविड से लड़ने में और उसकी रिकवरी के लिए कितना हेल्पफुल है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप। जी देखिए, सिर्फ कोविड-19 या सिर्फ एक यही इन्फेक्शन नहीं है जिसके लिए हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। इन्फेक्शन कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, वो चाहे बैक्टीरियल हो या पैरासाइट के थ्रू हो या फंगल या फिर वाइट्स, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कोड ने हमें एक वेपन दिया, जैसे मैंने पहले बताया था, जी, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। वो वेपन आपको मिला है, वो आपने एक्वायर नहीं किया, वो किसका दिया? यानी you were created on the same time that was gifted to you. Right. खुदा ने वो हमें दिया, और उसका काम ही सिर्फ इतना है, हमें हेल्दी बनाए रखना, हमें स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, और सर्वाइवल के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब बात यह आती है कि वो इम्यून सिस्टम मेंटेन कैसे रहे, हम उसको सस्टेन कैसे करें कि वो फुली
अपना काम करे, एक्टिवेट रहे समय को, जब भी ज़रूरत पड़े वो नेचुरल, जैसे परमेश्वर में से बनाया, गॉड ने से बनाया कि उसको समय पर एक्टिवेट होना है। जब भी कोई एंटीजन आता है फॉर नीचे, कोई एनिमी आता है बॉडी के अंदर, इस ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो कैसे काम करेगा, वो मेंटेन कैसे रहेगा, सस्टेन कैसे रहेगा, और हम उसे कंप्रोमाइज़ होने से कैसे बचा रहे, क्योंकि वही एक वेपन है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो या फंगल हो या फिर वायरस हो। जैसा कि आपने कहा कि न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड स्लीप। देखिए इम्यूनिटी भी अलग से नहीं है, वो किसी ह्यूमन बॉडी का एक हिस्सा है और उसका अपना एक मैकेनिज्म है, वो कि आपको बाहर से नहीं डर जाती, वो वहीं अंदर बनती है और वो वहीं काम करती रहती है, वहीं अंदर बनती है, वहीं काम करती रहती है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे स्ट्रेस को। जी देखिए, हम सभी जानते हैं और आप भी इस बात को समझते होंगे, जब तक आपका माइंड पीस में नहीं है, या कह लीजिए आप, अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है जी, तब तक आप हेल्दी नहीं है। एक्सेप्ट। अब ह्यूमन बॉडी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके पीछे भी एक बॉडी है और उसको कमांड करता है ब्रेन, और ब्रेन के अंदर ही अभी तक तो मेडिकल साइंस ने जा पाया है इंटेलेक्ट और आपकी विल, ये दो चीज़ें होती हैं। इंटेलेक्ट और विल, ये दोनों मिलके आपको बनाते हैं और यही तय करते हैं कि हाउ विल यू सर्वाइव। अगर आप अपने बिलो पार हो, अगर आप अपनी विल आपकी डाउन साइड है और आपका इंटेलेक्ट लेवल, आपका इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो जो स्ट्रेस है उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे, और स्ट्रेस आपको पीसफुली नींद नहीं देगा। स्लीप और स्ट्रेस, दे बोथ आर इंटेलेक्ट एंड दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आप अगले दिन फ्रेश नहीं उठेंगे। अगर आप ठीक से अच्छा नहीं सोचेंगे, कूल काम नहीं रहेंगे, तो आपका शरीर पर उसका दुष्प्रभाव, चाहे साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जैसा कि इसीलिए हमने देखा है कि वुमेन्स में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आपने अपने किसी भी पेशेंट को कोरोना के लिए एज अ हेल्थ कोच आपको एडवाइस करना है, सबसे पहले आपको उसे स्ट्रेस फ्री रहना सिखाना होगा। बिल्कुल। आपको उसे सिखाना होगा कि स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी ऑन द इम्यून सिस्टम। अगर वो ठीक से प्रॉपर नींद नहीं लेगा, एक अच्छी और प्यारी नींद, सुबह उठ के वो एकदम फ्रेश नहीं उठेगा, तो इम्यूनिटी हमारी बिल्कुल से बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी तो होनी ही है। फिर जब आप अच्छे से सोएंगे नहीं, आप पूरे काम नहीं रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अफेक्ट करेगा, आपकी अपराइट लॉस होगी, आपकी जो क्रेविंग्स हुआ करती थी उन चीज़ों से आपको उसका एमर्जन हो जाए, आपके अंदर मूड स्विंग्स आएंगे, आपका थर्मोस्टेट चेंज होगा, पूरा बॉडी का मैकेनिज्म चेंज होगा, आप डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। उसका फर्क आपके मास्टर ग्लैंड पर पड़ेगा जो आपके पूरे शरीर को चला रही है। देखिए, ब्रेन आपका एक कमांडिंग एरिया है जहाँ से आपकी सारी कमांड चलती हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, ठीक है। वो नर्वस सिस्टम आपको कंट्रोल किए हुए हैं। अगर आप उस नर्वस सिस्टम को कूल एंड काम नहीं रखेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, और जब इम्यूनिटी अफेक्ट होगी आपकी, तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे किसी इन्फेक्शन से। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। जी, अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं, अगर आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं और आप एक हेल्दी वन भी है, तो आप जो डाइट लेंगे वो डाइट भी आपकी उतनी अच्छी और बैलेंस होनी चाहिए जो आपको बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ना कि सिर्फ टमी को भरने के लिए। आप वही खाएं जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब कितना लेना है, फैट कितना लेना है, वो
जितना ज़रूरी है, कितना शुगर हमें लेना है, कितना सॉल्ट हमें लेना है, वो सब एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, कि उसको पता ही नहीं है। ठीक है, आप एक हेल्थ कोच हैं और एज अ हेल्थ एडवाइज़र या हेल्थ कोच, ये आपको अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बताना होगा, समझाना होगा कि ये ह्यूमन बॉडी है, इसकी एक बेसिक डिमांड है। अगर आपका हाइट इतना है, आपका मसल मास इतना, सॉरी आपका BMI इतना है, तो आपको क्या क्या कितना लेना है और क्या नहीं लेना है आपको। अगर आप साथ में कोई कमोडिटीज़ लेके चल रहे हो, कोई डिसीज़ है, डायबिटीज़ है आपको, या ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपकी डाइट में कुछ कैलोरीज कम करी जाएगी, या तो वो सब आप एक एज ए हेल्थ कोच, एज ए हेल्थ एडवाइज़र, वो आपको बताना होगा लोगों को कि न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत ज़बरदस्त का पूरा रूल है। क्योंकि प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे अपनी डाइट में, तो आप जब प्रोटीन ही नहीं होगा, आप बने पूरे प्रोटीन से हो जी बिल्कुल, आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपको नहीं लेते हैं, तो आप क्या फाइट करोगे। इम्यूनिटी का मेन पार्ट तो प्रोटीन ही है। तो लोगों को समझना होगा कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आए, जंक और फास्ट बंद करें। पेंटामेसिटी कभी भी आ सकती है, 2019 में आई थी, वो अब फिर से स्प्रेड कर रहा है। आज 26 मई और 2025 को जो डाटा इवनिंग आवर तक था, वो डाटा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट रेड है, और इंडिया में 12 स्टेट्स में कई डेथ्स हो चुकी हैं। एक्टिव केसेस आर अबाउट 250, और जिसमें जो रिकॉर्डेड केस है 1009 के आसपास थे शाम तक। तो अगर मैं ठीक से डाइट नहीं लूँगा, मैं ठीक से सोऊंगा नहीं, मैं ठीक से रिलैक्स नहीं रहूँगा, तो मेरी इम्यूनिटी नॉट वो सर्वाइव स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी, सॉरी। और दो वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी, देखिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती, वो है या नहीं है। एग्जैक्टली, वो एक ऐसा वेपन है जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। ओके, अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो यू कैन फाइट, अगर नहीं है तो यू लूज डेफिनेटली, देयर इज नो नीड टू फाइट। फिर आपको जरूरत ही नहीं डरने की, आप हार मान लीजिए। तो उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के, उस वेपन को, एक अच्छी नींद, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, और सबसे बेस्ट आपका न्यूट्रिशन, एक हेल्दी बैलेंस डाइट, जो हमें शुरू से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आपने ये डाइट लेनी, इतना खाना है। वो चाहे कोरोना वायरस हो या फिर कोई भी वायरस हो, रेस्पिरेटरी वायरस, कोई बैक्टीरिया हो, इवन निमोनिया हो सिंपल से, या फिर कोई भी डिसीज पैथोलॉजी हो, अगर आपको उससे लड़ना है तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। वो डाइट जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकता है, बस इतना ही। और दूसरा ये कि अगर आपके साथ में कुछ अलग डिसीज़ हैं जो आप लेके चल रहे हैं, या कैरी कमोडिटीज़ इन ए बॉडी, उस वक्त तो न्यूट्रिशन का रोल और आता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल बढ़ता है एक ट्रेनर का, स्पेशली क्वालिफाइड हेल्थ कोच का, एडवाइज़र का, जो हमें बताता है मेरी बॉडी की 24 आवर की डिमांड क्या है, कितना किलो कैलोरीज मुझे चाहिए, उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट, कितना लिपिड्स। वो एक क्वालिफाइड हेल्थ एडवाइज़र या हेल्थ कोच ही आपको बता सकता है। बाकी डाइट में आप कुछ मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर सर ने हमारे साथ डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन, स्लीप और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, तो इस चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और अब मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे पिछली बार का जो कोरोना आया था, हमने काफ़ी सारी नेचुरल रेमेडीज़ और सप्लीमेंट्स ऐसे लिए थे, जैसे कि हमने काढ़ा बना के पिया था और ये सब किया था। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो हम ले सकते हैं कोरोना को प्रिवेंट करने में या उसकी रिकवरी के लिए, मेडिसिन से हटकर? देखिए, एज ए डॉक्टर एंड एज ए वॉरियर, जब हम लोगों ने हम सब के लिए एक नया वायरस था, पूरी दुनिया के लिए एक नया वायरस था और बहुत चैलेंजिंग था जी। दुनिया के जिस हिस्से में, जिस कोने में, जिस शहर में ये वायरस गया, वहाँ उसने सबको अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया। देखिए, हर इंडिविजुअल की अलग इम्यूनिटी है, उसका अलग करैक्टर है, उसका अलग रिएक्शन होगा। हो सकता है हम 10 लोग हों, 10 लोग में से हम 10 के 10 लोगों को कोरोना वायरस हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, हम हो सकता है सब अलग अलग बिहेव करें। उनमें से कुछ शॉर्ट टाइम में रिकवर कर जाएं, कुछ
थोड़ा टाइम ज़्यादा लें, कुछ लंबे समय तक उससे इन्फेक्टेड रहें और वो डिसीज़ उनमें इतना वर्स और प्रोग्रेसिव होता चला जाए कि हो सकता है किसी एक की डेथ भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है उसकी खुद की इम्यूनिटी पर कि वो कैसे और क्या, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या फिर हम कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में डिस्पोजिशन, कि समय आने पर मैं उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँगा, मेंटली, फिजिकली, मेरा बॉडी कैसे बिहेव करेगा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बिहेव करेगा उस डिसीज़ कंडीशन में, या मेरा माइंड कैसे उस डिसीज़ कंडीशन को अडेप्ट करेगा। मैं डिस्पिलिटी में जाऊँगा, वही कि फिर से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस लूँगा या स्ट्रांगली उसको मैं फेस करूँगा। अब बात आपने कही कि इन चीज़ों के लिए नेचुरल रेमेडीज, जी देखिए मेरा मानना है देयर इज नथिंग लाइक प्रिवेंशन। हालांकि एज ए डॉक्टर हमें सिखाया जाता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये वायरस ऐसा वायरस है जहाँ वेरिएंट्स, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। प्रिवेंशन आप करिए, आप खुद को हाइजीन में रखिए, आप डिस्टेंस बना के रखिए लोगों से, आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। इस समय जब केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों के पास न जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो आप मास्क पहन के जाएं। जो भी एडवाइजरी आपको दी गई, ट्रेनिंग दी गई हाइजीन को लेके, डिस्टेंस को लेके, और पानी पीना, बिल्कुल गुनगुना पानी गार्गल करना और मास्क पहन के रहना, खुद को घर में आइसोलेट करके रखना, बहुत ज़रूरत के लिए बाहर जाना। अगर लग रहा है कि फिर से भी पेंडोमिसिटी आने वाली है तो आप प्रिवेंशन के तौर पे ये सब कर सकते हैं, बट आप सोचें कि ये आपको हेल्प करेगा, ये हेल्प तो करेगा, ये आपको उससे लड़ने में हेल्प नहीं करेगा। अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए हैं और बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है तो ये चीज़ आपको उससे लड़ने में इन्फेक्ट नहीं करेगी, हाँ आपसे किसी और को ना फैले, ये स्प्रेड होने में हेल्प करेगा। IG, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, ये दो चीज़ें आपको, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मुझे हो गया है तो मैं अगर किसी को टच करूँगा, मैं हाथ धो के टच करूँ, या मैं स्नीज़ कर रहा हूँ, मेरा मास्क से मेरा फेस बहुत कवर है, वो जो स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़्यादा एरिया में ना फैले, तो मैं एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते दूसरों को इस इन्फेक्शन को ना पहुँचाऊँ, जिम्मेदारी मेरी बनती है। जी ठीक है, जब हर बंदा इस तरह की जिम्मेदारी निभाएगा वो डेफिनेटली इन्फेक्शन कम ही स्प्रेड होगा और जहाँ तक है वो लिमिटेड रहेगा। अब बात आती है नेचुरल रेमेडीज। देखिए इम्यूनिटी के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, डाइट, न्यूट्रिशन, जो कुछ भी आपके लिए हेल्दी है आपके बॉडी के लिए, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप कोई एनिमल नहीं, आप ह्यूमन स्पेसीज, अब गॉड ने बहुत शानदार तरीके से आपको बनाया है। अब डिपेंड नहीं करता है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, दोनों तरफ अलग अलग तरह की डाइट्स हैं, लेकिन दोनों में बैलेंस डाइट होनी चाहिए जी। तो वो आपको समझना होगा, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, रेमेडीज का नहीं है। ओके हाँ, जो रेमेडीज है वो न्यूट्रिशन ही है जी। आप उन्हें लेबल कर दें कि रेमेडीज है। मान लीजिए आपने काढ़ा बना के दिया कि मैं अदरक का, काली मिर्च का, लौंग, इलायची का एक काढ़ा बना, आप हल्दी का डाल के दूध पी रही हूँ एंड आई एम फीलिंग, ऑब्वियसली उस स्पाइसेस के वो कैरेक्टर है जी, कि वो आपको रेस्पिरेटरी डिसीज से, आप एलियम सीबा, यानी इस प्याज को एलियम सीबा बोलते हैं। अगर आप प्याज के बारे में पढ़ें तो प्याज, जो भी लोग प्याज खाएंगे ना, वो उनकी इम्यूनिटी अच्छी से डेवलप होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने में। करेक्टर है एलियम सीबा का, स्पाइसेस के अपने करेक्टर हैं। आप उन्हें रेमेडीज क्या है, इंडियन कम्युनिटी में स्पाइसेस का इस्तेमाल ही इसलिए हुआ कि नॉन वेज ने इस तरह के मसाले पड़ेंगे, सब्जी में ये पड़ेंगे, क्योंकि वो उसका फंक्शन है कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ये खाना है। बिल्कुल। तो अब आप उसे लेबल कर दें एज अ रेमेडी, वो गलत होगा। होममेड रेमेडीज भी कहना गलत होगा, वो न्यूट्रिशन का पार्ट है। आप लें, आप लोग आज की जनरेशन कभी लेती नहीं है ना, प्रीवियसली आप जाए, सॉरी पास्ट में आप जाएं और फैमिलीज में जाएं, 90-80s में जाएं, 70s में जाएं, इवन 90 तक जाएं, घर घर में इस तरह की चीज़ें नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। हफ्ते में 2 बार जब भी सर्दियाँ आ रही होती थी या चेंज ऑफ वेदर हो रहा था, दादी या नानी मिलके आपको वो चीज़ें, अदरक शहद शुरू कर देती थी देना, फिर चबाते हो जाओ। तो उन्हें रेमेडीज कहना गलत है। न्यूट्रिशन तो मैं छोड़ दूंगा, एज ए हेल्थ कोच, एज ए हेल्थ एडवाइजर, प्लीज़
आप लोगों को ये ना बताएं कि एक रेमेडी है, क्योंकि वो उसका बहुत मिसयूज़ करते हैं। फर्स्ट वेव में उस काढ़े का इस्तेमाल इतना किया गया कि बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए। एग्जैक्ट। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि वो ओवरडोज कर रहे हैं एक फर्स्ट काढ़ा। तो अब एक लेमैन, एक जिसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मुझे कितना ग्राम अदरक लेना है 24 घंटे में, इतना ग्राम अदरक मेरे शरीर के लिए लाभदायक है, और कितना ग्राम जिंजर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, कितना सॉल्ट मुझे चाहिए कि एज अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, कितनी शुगर मुझे चाहिए, या कितना हल्दी मुझे खाना है, कितना टर्मरिक मुझे लेना है, कितना गार्लिक मुझे लेना है, कितना अनियन मुझे लेना है, या कितना फ्रूट मुझे खाना है। तो वो जब तक आपको नहीं पता तब तक आप जो भी खाएंगे या तो कम खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे, और जब तक आप बैलेंस नहीं खाएंगे तब तक आपकी एबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं है, वो बनेगी ही नहीं, वो तैयारी नहीं होगी। और दूसरा, आपका ह्यूमन बॉडी जो है वो इतना स्मार्ट है, परमेश्वर ने इतना स्मार्ट बनाया, वट एवर यू ईट सेल्स एट फर्स्ट। जब भी आपकी टेबल पे सामने रखा होता है, अगर वो आपका बॉडी नहीं करेगा, यू हैव टेस्ट, राइट, है ना, वो टेस्ट आपको आना शुरू हो जाएगा, आपके टेस्ट पर स्टार्ट क्रिएटिंग सलाइवा, कहता है ना पानी आ गया। तो वो बॉडी इतना स्मार्ट है कि आप वो काढ़ा अगर पी रहे हैं, वो सेंस कर लेगा उसको, और उसे पता है कि किसी काम का नहीं है, डेफिनेटली वो उसको एक्सक्यूट कर देगा, और ये जो काम का होगा उसे ले लेगा, जो काम का होगा उसका भी निकाल ले। लेकिन आप ओवरडोजिंग करते रहेंगे तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस होगा। और अगर कोई भी आपने ऐसा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कोई भी पदार्थ ऐसा दिया है जो ओवरडोजेस है, धीरे धीरे करके यू आर गेटिंग अ पॉइजनस। ठीक है, आप एक पॉइजनस स्टेज में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए आप बेरी नहीं है उस चीज़ को, तो आगे जाके हो सकता है वो हाईली एसिडिक हो, राइट, है ना, हो सकता है वो हाईली अल्कलाइन हो। एग्जैक्ट। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं जो ले रहा हूँ हाईली अल्कलाइन है, मुझे पेरेंट्स सकते हैं ना आई हुई ऐसे लिखे, या तो मुझे तो अपने ब्लड का पीएच मेरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, तो वो कौन को बताएगा। एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, एज पर द डिमांड ऑफ द डिसीज, एज पर द सीवियरिटी ऑफ अ डिसीज, एज पर द सिचुएशन ऑफ द डिसीज। मैं सिचुएशन से मेरा मतलब यहाँ पे ही है कि अगर आपके पास एक बीमारी है, वो लंबी है, 10 साल हो गए, हमने 10 साल से डायबिटीज से पीड़ित हुई, तो क्या हुआ, चीनी कम खानी चाहिए। लोग कहते हैं ना, नहीं, नई गाइडलाइन कहती है कि आपकी पीपी पोस्ट पार्टनल शुगर आपको 180 से 190 के बीच, डायबिटिक पेशेंट्स को रखनी है 200 तक, उससे नीचे नहीं जाने, 150 से नीचे 200 के बीच में रखनी है, वरना आप हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाओगे, जल्दी जल्दी जाते रहोगे। अगर आपने मील्स को कम किया तो आप हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं कि। इसी तरह जो एक्यूट पेंडेसिमिटी है, सॉरी, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, या फिर कोई एक्यूट डिसीज़ है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी की डिमांड, जितना सीवियर डिसीज़ होगा, जितना फ्रैंक डिसीज़ होगा, जितनी फ्रैंक पैथोलॉजी होगी, उतनी तेज़ी से स्प्रेड करेगा। वहाँ फिर आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपका बॉडी तेज़ी से इन्फेक्शन और हाईली इन्फेक्शियस होता चला रहा है, और उस पैथोलॉजी की सीवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, बैक्टीरिया या वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टॉक्सिस तो वो बढ़ रहा है ना। तो अब आपको वहाँ पे खुद को हील करने के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जब तक आप खा पा रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि फिर आपको भूख ही लगती है, इन्फेक्शन की वजह से आपकी एपेटाइट लॉस हो जाती है। फिर तो बिना अच्छे न्यूट्रिशन के यू आर नॉट गोइंग टू सनलाइफ, आपका इम्यूनिटी आपको नहीं मिलने वाला। आप काढ़ा पिए, आप कोई भी फ्रूट्स खाएं, या आप कुछ भी नहीं, जब तक एक बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे। और वो बैलेंस डाइट आपको आपका हेल्थ कोच या हेल्थ एडवाइजर या कोई डाइटिशियन। जी हाँ, आपने ये बात बहुत सही बोली कि हर चीज़ हमें बहुत बैलेंस में लेना चाहिए, क्योंकि लोग ही नेचुरल रेमेडी जो हमारे किचन में पाई जाती है, और दो वो हमारे किचन में है और हमें उसको लेना चाहिए, लेकिन उसको नेचुरल रेमेडी के नाम पर इतना ज़्यादा ओवरडोज कर लेते हैं जो कि उनको काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही अच्छी बताई डॉक्टर ने कि हमें हर चीज़ को बहुत बैलेंस में लेना है, और न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन की तरीके से लेना है, नेचुरल रेमेडी समझ के नहीं लेना है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, जब एक विश्व पटल पर पूरे वर्ल्ड में इस तरह की पेंडेमिक आई कभी भी, ठीक, और आज तो हम सोशल मीडिया पे हैं,
इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कुछ भी इतना तेजी से वायरल होता है बिल्कुल। कि यहाँ बैठे बैठे वो कब अमेरिका पहुँच जाएगा, कब लोग वही यूज़ कर रहे हैं, किसी को नहीं पता पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। किसी ने बोला कि आप ये वाली ये चीज़ है, ये पदार्थ है या ये फ्रूट्स है या फिर एक बीज है, वो लाओ ढूंढ के पेड़ से तोड़ के लाओ, उसे खाना शुरू करो। आई थिंक दैट वाज मूसली, व्हाट वाज दैट एट द टाइम ऑफ कोविड, वो एक बोला गया था मुलेट। मुलेट ही मूसली, या फिर काढ़ा बना के पीना, या फिर होम्योपैथी की फलानी दवा है वो आप लेना शुरू करें, या एलोपैथी में ये ड्रग्स आए हैं ये लेना शुरू करें। देखिए आप अभी उस समय में हो जहाँ अभी भी रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। राइट। एक साइंटिस्ट ही बेहतर जानता है कि इस वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है, या हमारे पास कितने बड़े हथियार हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, हम कहाँ हैं इस स्टेज पे। एग्जैक्टली। एज ए डॉक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग जो मैंने सीखा और समझा और जाना वो ये था कि इस तरह की सिचुएशन में आपको कूल, काम, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, और वो आप कैसे बनता है आपका फिजिकल बॉडी बाय एक्सरसाइज एंड बाय गुड एंड हेल्थी न्यूट्रिशनल डाइट, आपका पीस, बाय हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये दोनों आप मेंटेन रखें और फिर देखें आप। अब बात आती है डाइट की, तो डाइट, नॉर्मल डाइट से आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में आपकी बॉडी की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, उसे हाई कैलोरीज चाहिए, उसे रिच प्रोटीन डाइट चाहिए, रिच कैलोरीज चाहिए, उसको लड़ना इन्फेक्शन से, कार्ब भी चाहिए, उसे फैट भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी चाहिए, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। अब ये सब एज पर द बॉडी वेट एक अच्छा हेल्थ एडवाइज़र, हेल्थ कोच या एक डाइटिशियन आपको डिज़ाइन करके दे सकता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जी। और बहुत तेज़ी के साथ आपका बॉडी विल स्टार्ट गेनिंग और रीबिल्ड्स और हर इम्यूनिटी। और नहीं बात काढ़ों की या फिर इस प्रकार के जो पदार्थ हैं बताए जाते हैं, वो सब देखिए, अगर आप एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, जब तक आप डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास नहीं है तब तक नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आप एक अच्छे फिजिशियन से एडवाइस लें, एक कुलिनरी मेडिसिन के कंसल्टेंट से जाके मिलें, एक अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ से मिलें जिसे गवर्नमेंट ने एक हेल्थ एडवाइजरी दी हुई है, ट्रेनिंग की प्रोग्राम दिया हुआ है, और या फिर डाइटिशियन से मिलें। कम से कम आप गलत फूडिंग चुनेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला कि सारी चीज़ें आकर हमारी वापस टिक जाती हैं हमारी इम्यूनिटी पर ही। हम किसी चीज़ को नेचुरल रेमेडी समझ के ये सोच ले कि हमें बहुत बड़ा वेपन मिल के आएगा, इससे हमें कोरोना नहीं होगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि हमें लेना है एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक अच्छा न्यूट्रिशन। और अगर आप ये तीनों चीज़ों को बैलेंस रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये इम्यूनिटी ही है वो चीज़ जो आपको हेल्प करेगी कोरोना से फाइट करने के लिए, ना कि कोई सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़। तो जैसे कि अभी आपने एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट किया है लोगों का कि नेचुरल रेमेडी वाला जो सो कॉल्ड है, इसी तरीके से मैं एक छोटा सा गेम आपके साथ खेला चाहती हूँ, मिथ बस्टिंग का ही, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बस ये बताना है कि ये मिथ है या ये फैक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोविड जो है वो एक कॉमन कोल्ड की तरह ही है, ये कि कोई डेंजरस एक प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये फैक्ट है या ये एक मिथ है? ये मिथ है। मिथ है। फैक्ट नहीं है, एक मिथ है। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर किसी को पहले कोविड हो चुका है तो उसको वो आगे नहीं होगा, ये एक मिथ है या फैक्ट है? ये भी मिथ है, आगे। ओके। स्टीम और हल्दी जो है वो कोविड को क्योर कर सकती है? देखिए, एज बीइंग डॉक्टर और मेडिकल साइंस स्टूडेंट रहने के नाते, जीने के नाते मैं इतना बता दूं, हल्दी के भी अपने गुण हैं। जैसे हर पदार्थ जो नेचर में हमें मिला है परमेश्वर के द्वारा, वो सब रेमेडीज ही है। लेकिन ये कह देना कि हल्दी और क्या बताया आपने, हल्दी और स्टीम लेने से, देखिए हल्दी और स्टीम लेने से ये तो अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ कहीं पे भी कि सिर्फ हल्दी देने से आप क्योर हो जाएंगे या इस इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। लेकिन हल्दी के अपने गुण है, उसके फ़ायदे हैं, उसका ज़्यादातर फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है और
जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है इस तरह की बीमारी में लड़ने की, वो हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए तो उसके कैरेक्टर की वजह से। लेकिन सिर्फ हल्दी एक स्पेसिफिक हो गया, ये एक मिथ है। इवन स्टीम लेने से भी एक मिथ है। लोगों को यहाँ तक पता था कि जो टोबैको च्यूअर है, जो अल्कोहल लेते हैं, वो सब सेफ रहेंगे। ये सारे मिथ्स हैं। रेस्पिरेटरी वायरस आते रहेंगे और हर 100 साल बाद, हो सकता है आने वाले समय 50 साल बाद भी आ जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ, ये वायरस बहुत लंबा खींचा है, 7वां साल चल रही थी, अपने अलग अलग वेरिएंट्स में ही आ रहा है। और इस बार का वेरिएंट्स जो आया है वो तो इम्यून इवेजन वाला मैकेनिज्म लेके आया है, और उसने म्यूटेशन भी किया स्पाइक स्प्रिंग में। अब हो सकता है आगे नया और वेरिएंट आए, लेकिन हमें लड़ना होगा, सर्वाइव करना होगा इस प्लैनेट पर, और जिसके लिए हमें हेल्दी रहना होगा, और उस हेल्दी रहने के लिए हमें खुश रहना होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मास्क पहनने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? ये मिथ है या फैक्ट है? देखिए, शील्ड ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तभी युद्ध मैदान में एक तलवार और एक शील्ड लेके जाता है, तो शील्ड से वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, तलवार से वो डरता है। तो आपका वेपन इम्यूनिटी है, मास्क आपकी शील्ड है। एंट्री कहाँ से होगी वायरस की? आपके नाक के पड़ा, ठीक है। एयर मोर इन्फेक्शन है, हवा से रहता है। जब आप ब्रीथ करोगे इट विल गो इनसाइड, राइट। अगर आप मास्क पहन के ब्रीथ करोगे तो ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि आप तो मास्क वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये भी एक मिथ। यस। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या कोविड टेस्ट रिलायबल है या नहीं? यस, फैक्ट है। यस फैक्ट है। मैंने खुद पे टेस्ट किया 2 बार, और मैंने अपनी फैमिलीज में 2 लोग खोए हैं इसी वजह से। उन पे भी टेस्ट किया, रैपिड टेस्ट किया मैंने, और रिलायबल है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप फॉल्स नेगेटिव आते हैं। अगर आप नेगेटिव आ भी रहे हैं रैपिड टेस्ट पे, RT-PCR में, ठीक है, सिम्टम्स हैं, वही पैथोलॉजीज है, वही एक्सरेज हमने देखे हैं, वही सेम एक्सरेज, वही सेम सिम्टम्स, वही सेम पैथोलॉजीज, लेकिन पेशेंट नेगेटिव नहीं आ, सॉरी पॉजिटिव नहीं आ रहा। इवन RT-PCR ठीक मुझे फिर भी उसको ट्रीट हम कर रहे हैं कोविड की गाइडलाइन में ऐसे करके। तो ये अभी तक, ये मुद्दा अभी तक है इस बात का कि क्या ये टेस्ट है, लेकिन ICMR की गाइडलाइन है, उसके थ्रू ये टेस्ट हो रहा है। जहाँ तक डाटा मिला है, जितने भी केसेस में पॉजिटिव आए हैं, वो ये बात तय करती है कि ये टेस्ट रिलायबल है। ग्रेट। तो आपके साथ बात करके काफ़ी कुछ अभी इंसाइटफुल पॉइंट्स मिले हैं, और काफ़ी कुछ हमारे जो नोशन थे, आई थिंक हमारी ऑडियंस की भी ऐसे नोशंस थे जो कि काफ़ी ब्रेक हो चुके होंगे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो डॉक्टर, बस लास्ट एक चीज़ है जो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज जो आप अपने व्यूअर को देना चाहें जो कि इस समय डरे हुए हैं या फिर कंफ्यूज है कि इस कोरोना से बेसिकली कैसे लड़ना है, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। मेरे देश के प्यारे बहन भाइयों, उम्र में बड़े मेरे सभी दोस्तों, मित्रों, कुछ पिता तुल्य रहे होंगे, कुछ माता समान, उन सभी स्त्रियों को जो मुझसे इतनी बड़ी है कि मेरी माँ समान है, उन सभी पुरुषों को जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन सभी भाइयों को जो उम्र में बड़े होने के नाते मेरे भाई समान है, हर छोटे बच्चे को, और हर उस दर्शक को जो इस वक्त देख रहा है या जब भी वो इस पॉडकास्ट को देखेगा, सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और इतना ही कहना चाहूँगा कि डरना नहीं है। कि पहली बार कोई महामारी इस पृथ्वी पर नहीं आई, हमेशा से आई है, हर समय में आई है, लेकिन आप डरें कि आप जो भी हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस प्लेनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज के तौर पर आपको परमेश्वर ने बनाया है।
कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट जिस तरीके से फैल रहा है, जैसे स्प्रेड हो रहा है, वेव 1 में भी इंडिया ने यही किया। अवेयरनेस तो लोगों में कम आई, डर ज्यादा आया। बिल्कुल। देखिए, इस डर से आपको बाहर आना होगा और वायरस आएंगे, बनेंगे, नए पैदा होंगे, नए नए वेरिएंट्स के साथ आएंगे। हम वही रहेंगे, पीढ़ियां बदलेगी, ह्यूमन बॉडी में ही रहेगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जब तक आप खुश हैं, जब तक आप हेल्दी हैं, जब तक आप स्ट्रांग हैं, तब तक आप ऑलवेज हील्ड रहेंगे, आप ट्रस्ट रखिए। लेकिन जब आप डिमोरलाइज होंगे, डिस्पैरिटी में जाएंगे, या फिर आप पैनिक बटन अपना बार बार दबाएंगे, आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो परमपिता परमेश्वर ने बनाया, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि आप कभी भी गिर सकते हो। एक छोटा सा फ्लू वायरस भी आपको लगेगा कि वो भी आपको मार सकता है। तो उन सभी स्वस्थ लोगों के लिए जिनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, उम्र कोई भी हो, सभी से तरह निभेगा ना, जैसे हेल्दी हैं वैसे रहें, डेली उठें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, नॉर्मल डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, और हर वो चीज़ खुद से दूर रखें जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स में आती है, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टोबैको हो, या फिर फास्ट फूड, जंक फूड, हैवी मील्स या हैवी ऑयली फूड्स। बाकी जो लोग पहले से बीमार हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कोई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे है, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि देखिए, जिस सिचुएशन में आप हैं उस वक्त आपके पास सिर्फ अपनी विल को स्ट्रॉन्ग रख करके आपको अपना दरवाज़ा नहीं खोलना है बीमारी को आने देने के लिए। इसका मुख्य 3 काम आपको कर रहे हैं। आप क्राउडेड प्लेस में जाना बंद करें, जाए तो डिस्टेंस मेंटेन रखें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हाइजीन मेंटेन रखें। तीसरा, आप मास्क पहन के रहें। चौथा, खुद को कमज़ोर ना समझें, जो मुख्य बात है। आपका चाहे कोई भी दवा चल रहा हो, कोई भी इलाज चल रहा हो, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, इस बात की डिक्लेरेशन, सी क्लेमिंग अपने मन में बार बार करें। उसको नेगेटिविटी में, डिस्पेरिटी में जाने ना दें, और अच्छी डाइट लें एज पर योर डिसीज, एज पर योर पैथोलॉजीज। अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपने हेल्थ एडवाइजर से करें, अब इससे भी करें, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति से करें जो हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है और जिसे नॉलेज इस बात की कि इस ह्यूमन बॉडी को ये वाली डाइट बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर लास्ट में बात आती है इम्यूनिटी की। देखिए, इम्यूनिटी का संबंध सीधे आपका वो वेपन है जो आपको गॉड गिफ्टेड है। तो जहाँ से मिलता है आप उसके समक्ष जाएं, खुद को अधीन करें और प्रार्थना करें इस बात की कि आपने मुझे रचा, आपने मुझे बनाया, अगर मुझ में कोई कमी घटी है तो आप ही इसको दुरुस्त और सही कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, हमें भी शुरू से ही सिखाया गया, वी कैन ट्रीट द सिकनेस, वी कैन चेंज द लाइफ साइकिल। जीवन परमपिता परमेश्वर से आता है, इम्यूनिटी वहीं से आती है। अच्छा भोजन करें, अच्छे माहौल में रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने बच्चों को इस पैनिक बटन से दूर रखें। सोसाइटी में अवेयरनेस लाना एक अलग बात है, लेकिन पैनिक कर देना पूरी सोसाइटी एक अलग बात है। हम तो खुद रहे हैं, एज अ वॉरियर रहे हैं, एज अ प्राइवेट सेक्टर में हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट पेंडेमिसिटी हमने काम भी किया, सिक पेशेंट्स के साथ रहे, हाईली इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ रहे, आज भी यहाँ बैठे। तो कहीं ना कहीं ये विल पावर है आपकी और इंटेलेक्ट, ये दोनों आपके दुरुस्त रहेंगे तो आप हेल्थी रहेंगे, आप हील्ड रहेंगे, आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे। तो आइए, सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।